1200। کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں ڈی ڈی سی اور پنچایت کے ضمنی انتخابات کے 8ویں اور آخری مرحلے کے تحت اچھی خاصی پولنگ ہوئی ہے۔ سخت سیکیورٹی کے بیچ کووڈ گائیڈ لائنز کے تحت پولنگ منعقد ہوئی۔ دیکھیے رپورٹ۔ جموں کشمیر میں ڈی ڈی سی اور پنچایت اور یو ایل بی کے ضمنی انتخابات اختتام پذیر ہو گئے ہیں۔ ضلع پلوامہ کے کاکپورہ بی اور میونسپل کونسل پلوامہ کی خالی نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ سخت سیکیورٹی انتظامات کے بیچ یہاں پولنگ ہوئی۔ سخت ترین سردی کی وجہ سے اگرچہ پولنگ مراکز پر بہت زیادہ گہما گہمی نہیں دیکھی گئی، تاہم ووٹروں کی اچھی خاصی تعداد نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ کاکپورہ بلاک بی کی ڈی ڈی سی سیٹ خواتین کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں 3 خواتین میدان میں ہیں۔ پلوامہ کونسل کی 12 خالی نشستوں کے لیے بھی آج ووٹ ڈالے گئے۔ قصبہ پلوامہ میں ووٹنگ کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پاور آب مشکلات ٹرین چھن کوچ بیس لوکل کینڈیڈیٹ گھان کھڑا کہین من گئی کینڈیڈیٹ کھڑا یہ خوش قسمتی پلوامہ خاطر کہ انشاء اللہ الرحمان اس پتمس 18 ورین خاص کر 18 ورین اس نقصان گو مین ٹاؤنس انشاء اللہ الرحمان یہ واپس اس نقصان کی بھرپائی ہو جائے گی۔ ضلع اننت ناگ کے بجبہاڑا بلاک میں آج ووٹ ڈالے گئے۔ 8 امیدوار میدان میں ہیں۔ ووٹنگ عمل کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ یہاں پر قائم 224 پولنگ اسٹیشنوں کو انتہائی حساس قرار دیا گیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ محض اپنے بنیادی مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ان انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ امیدواروں کا بھی کہنا تھا کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کرانے کے خواہاں ہیں۔ بجبہاڑا بلاک سیاسی طور پر بھی حساس ہے۔ یہ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا آبائی علاقہ ہے۔ سابق وزیر اور پی ڈی پی کے سینئر لیڈر عبدالرحمان ویری کے فرزند تصدق ویری بھی میدان میں ہیں۔ این سی کے سابق وزیر مرحوم عبدالغنی شاہ ویری کے بیٹے طارق ویری بھی بطور آزاد امیدوار میدان میں ہیں۔ محلہ 3 مکان کہین ایڈمنسٹریشن نفر ووت نہ تحصیلدار صاحب نہ کہیں ووت اوتنس تھی وچو خستہ حالت کچھ روڈ کیا نہ روڈ نہ آب حض چنہ خاطر نہ سڑک پکنہ خاطر گامس مز تھوڑا یہ ترقی گھن یہ کامہ گھنہ آبچ بجلی ہز باقی نارِ ہز کامہ۔ ضلع شوپیاں کے زینہ پورہ اے اور زینہ پورہ بی حلقوں میں بھی آج ووٹ ڈالے گئے۔ یہاں پولنگ کا عمل مجموعی طور پر پرامن رہا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے ان انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ زینہ پورہ اے خواتین کے لیے مختص ہے۔ یہاں 4 امیدوار میدان میں ہیں۔ زینہ پورہ بی میں 3 امیدوار میدان میں ہیں۔ دونوں مقامات پر اچھی تعداد میں لوگوں نے ووٹ ڈالے۔ بانڈی پورہ کے حاجن اے اور حاجن بی حلقوں میں پولنگ ہوئی۔ دونوں حلقوں میں 92 پولنگ مراکز قائم کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ میونسپل کمیٹی حاجن کی خالی نشستوں کے لیے آج چناؤ ہوا۔ تمام پولنگ مراکز پر ووٹروں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھنے کو ملی۔ انتخابات کے دوران خواتین ووٹروں کی ایک بڑی تعداد پولنگ مراکز پر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرتی دیکھی گئی۔ کپواڑہ ضلع کے واورا لولاب حلقے انتخاب میں ووٹ ڈالے گئے۔ سویرے سے ہی پولنگ مراکز پر خواتین سمیت دیگر لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھی جا رہی تھی۔ اس نشست کے لیے 10 امیدوار میدان میں ہیں۔ اس بار نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بھی پولنگ مراکز پر پہنچ کر اپنے اپنے پسندیدہ امیدواروں کو ووٹ دیا۔ گئی 7 وری آز ووٹ تراوان ات کہیں تہ مطلب اس نیران تراوان ووٹ ات مطلب درا کی مطلب درو تھی یمو بریک مویوک تین پن گھر آز یہ جمہوریت نو چینج۔ اچھا ہاں سمجھس من آز ما گھس چینج۔ اچھا آز گھس چینج اس یمو کن لوہ لنگرس من۔ بلاک پٹن میں بھی ووٹ ڈالے گئے۔ کافی تعداد میں لوگوں نے شدید سردی کے باوجود صبح سے ہی گھروں سے باہر آ کر پولنگ بوتھوں کا رخ کیا۔ تمام پولنگ مراکز پر ووٹنگ پرامن رہی۔ سیکیورٹی کے سخت بندوبست کیے گئے تھے۔ پٹن بلاک میں 12 امیدوار میدان میں ہیں۔ پٹن میں میونسپل کمیٹی کے انتخاب بھی ہوئے، ان میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پامپور میں آج 8ویں مرحلے کے تحت ووٹ ڈالے گئے۔ صبح سے ہی لوگ قطاروں میں ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچے۔ بلاک میں 4 خواتین امیدوار میدان میں ہیں۔ پامپور بلاک کو خواتین کے لیے مخصوص رکھا گیا ہے۔ ووٹروں کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے گئے تھے۔ علاقے میں کل شام سے ہی موبائل انٹرنیٹ خدمات کو معطل کیا گیا تھا۔ ضلع بڑگام میں سخت سیکیورٹی کے بیچ انتخابات اختتام پذیر ہوئے ہیں۔ آخری مرحلے میں بھی خاصی تعداد میں لوگوں نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ووٹ کی اہمیت ہے اور یہ انتخابات ان کے لیے کافی اہم ہے۔ انہوں نے امید جتائی کہ اب ان کے مسائل حل کیے جائیں گے۔
हमने आज वोट डाला जो अपना ये नुमाइंदा है डेवलपमेंट के लिए या बाकी जो कामों के लिए जो गाँव में बाकी दूसरे काम होते हैं, इसलिए हमने वोट डाला है अपना नुमाइंदा चुनने के लिए। सोपोर में म्युनिसिपल काउंसिल की 8 खाली असामियों के लिए वोट डाले गए। यहाँ खासी तादाद में लोगों ने वोट डाले। 30 उम्मीदवार मैदान में थे। 5 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए थे। कई वोटरों का कहना था कि उन्होंने तामीर और तरक्की के लिए वोट दिया है। एक खातून उम्मीदवार का कहना था कि कस्बे को काफी मुश्किलात दरपेश हैं, इसलिए वो मैदान में आई हैं। उन्होंने मसाइल हल करने के लिए काम करने की बात कही। ये इलेक्शन सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है और सोपोर के मसले मसाइल है बहुत सारे जो कि पिछले 30 साल से एड्रेस ही नहीं हुए किसी प्लेटफॉर्म पे। तो जिला कुलगाम के इंतहाई हसास इलाके केमू ए और बी ब्लॉकों में सख्त हिफाजती बंदोबस्त के बीच 8वें मरहले के तहत पोलिंग हुई। यहाँ 11% के करीब पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। 177 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। अगरचे पोलिंग की शरह कम रही, ताहम पथराव के चंद वाकयात को छोड़कर पोलिंग एहसन तरीके पर मुनक्किद हुई। केमू ब्लॉक को खवातीन के लिए मखसूस रखा गया है। जिला कुलगाम में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल की गई थी। डीडीसी इलेक्शन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन सर हमें यहाँ पे एक ही दिक्कत हुई कि यहाँ पे 1 किलोमीटर दूर हमें जाना पड़ रहा है। ऊपर से सर्दी भी बहुत है, ऊपर से ट्रैफिक भी नहीं चल रहा है, तो हमें बहुत ही दिक्कत हो गई सर। जम्मू जिले में भी इंतखाबात इख्तिताम पजीर हुए हैं। आखिरी मरहले के तहत खोड़ में पोलिंग हुई। यहाँ पोलिंग मराकज के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। उनमें खवातीन की खासी तादाद शामिल थी। लोगों को उम्मीद है कि नए नुमाइंदे तमाम मसाइल के हल की खातिर काम करेंगे। वोट हमें डालना ही चाहिए, अधिकार भी है, और मतलब अपनी जो भी मतलब हमारी प्रॉब्लम है, जो कैंडिडेट है उनसे यही उम्मीद है कि उस पर खरा उतरे। अखनूर के खोड़ ब्लॉक में भी आज वोटिंग हुई। खोड़ ब्लॉक में भी इंतखाबात को लेकर लोगों में काफी जोश खरोश देखा गया। बड़ी तादाद में लोगों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग मराकज का रुख किया। जिला पुंछ में मेजर सी और LOC पर वाक़ ब्लॉक मनकोट में वोटिंग हुई। पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के बावजूद लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। यहाँ भारी तादाद में लोगों ने वोट डाले। लोगों ने कहा कि गोलाबारी की परवाह किए बगैर उन्होंने पोलिंग मराकज का रुख किया है। लोगों को ताहम मलाल है कि इलाके में तामीर और तरक्की के हवाले से कुछ नहीं किया गया, बनकर भी तामीर नहीं किए गए हैं। सड़क, बिजली, पानी और तिबी सहूलियात के सिलसिले में भी मुश्किलात का सामना है। लोगों को उम्मीद है कि नए नुमाइंदे इन बुनियादी मसाइल को हल करेंगे। जिला सांबा में सांबा ए और सांबा बी हलकों के लिए DDC इंतखाबात के तहत वोट डाले गए। ये दोनों सीटें SC तबके के लिए मुख्तस है। 51 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। 11 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है। यहाँ भी बड़ी तादाद में लोगों ने पोलिंग मराकज का रुख किया। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के अलावा जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए भी खुसूसी इंतजामात किए गए थे। जिला उधमपुर में रामगढ़ 1 और रामगढ़ 2 नशिस्तों के लिए भी वोट डाले गए। सर्दी के बावजूद पोलिंग मराकज पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। लोगों को उम्मीद है कि नए नुमाइंदे अपने अपने इलाकों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। 94 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। उधर जिला रियासी में DDC हक़ रियासी में आज पोलिंग हुई। यहाँ बड़ी तादाद में लोगों ने वोट डाले। 82% के करीब लोगों ने रियासी में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। किश्तवाड़ जिले में हक़ किश्तवाड़ और त्रेगाम में वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से ही खासी तादाद में लोगों ने पोलिंग मराकज का रुख किया। वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। उनमें बुजुर्ग अफराद, खवातीन और नौजवान भी शामिल थे। 12 उम्मीदवार मैदान में है। पंचायत के खाली असामियों के लिए भी ज़िमनी इंतखाबात हुए। जिला डोडा के असर ब्लॉक में भी आज पोलिंग हुई। इस ब्लॉक में खासी तादाद में लोगों ने वोट डाले। लोगों का कहना था कि वो ऐसे नुमाइंदों को चुनना चाहते हैं जो उनके रोजमर्रा के मसाइल हल करें। यहाँ 7 उम्मीदवार मैदान में है। ब्लॉक में 71% के करीब पोलिंग हुई। जिला रामन के दूर दराज इलाके राजगढ़ ब्लॉक में एक नशिस्त के लिए पुरअमन तरीके से इंतखाबी अमल इख्तिताम पजीर हुआ। सुबह से ही वोटरों ने बढ़ चढ़कर पोलिंग में हिस्सा लिया। राजगढ़ ब्लॉक के लिए BJP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पैंथर्स पार्टी और चंद आजाद उम्मीदवार मैदान में है। वोटरों ने इलाके के मसाइल को हल होने की उम्मीद जताई है। जिला कठुआ में केदियां गंदियाल ब्लॉक में वोट डाले गए। यहाँ भी सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग मराकज पहुंचे। वेस्ट पार्क रेफ्यूजीज में खासा जोश व खरोश देखा गया। उन्होंने ढोल बजाते हुए मिठाइयाँ तकसीम की और अपनी खुशी का इजहार किया। वाज़ेह कि उन्हें पहली मरतबा वोट देने का हक हासिल हुआ है। रेफ्यूजीज को उम्मीद है कि अब उनके देरीना मसाइल हल हो जाएंगे। राजौली में आज 77% से ज्यादा पोलिंग हुई है। यहाँ दरहाल और सुंदरबनी हलकों में वोट डाले गए। लोगों में पोलिंग को लेकर खासा जोश देखा गया। नौजवान भी पोलिंग को लेकर काफी पुरअज़्म नजर आए। सुंदरबनी में 70 और दरहाल में 58 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे।
जिला इंतजामिया ने तमाम जरूरी इंतजाम किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। न्यूज़ 18 उर्दू ने DDC इंतखाबात से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाई। इंतखाबात की तशहीरी मुहिम हो या फिर पोलिंग, न्यूज़ 18 के नुमाइंदों ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। जम्मू कश्मीर में DDC इंतखाबात का पल पल का अपडेट देखिए परवेज भट्ट के साथ न्यूज़ 18 उर्दू पे। समीर भट्ट जम्मू से मैं आपको पल पल की अपडेट देता रहूँगा। न्यूज़ 18 उर्दू ने DDC इलेक्शन से जुड़ी तमाम खबरें अपने नाज़रीन तक पहुंचाई। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे हर पोलिंग मरकज पर रहे मौजूद और पल पल की खबरों से कराया वाक़ई। जम्मू कश्मीर में DDC इंतखाबात के दौरान सियासी जंग का पल पल का अपडेट देखें मुदस्सिर कादरी के साथ दिन भर न्यूज़ 18 उर्दू पर अनंतनाग से। DDC इलेक्शन की हर बड़ी अपडेट मिलेगी आपको न्यूज़ 18 पर जम्मू के हर पोलिंग बूथ से कुंवर सिंह के साथ। शदीद ठंड में भी न्यूज़ 18 की टीमें सुबह सवेरे से पोलिंग मराकज पर मौजूद रही। न्यूज़ 18 उर्दू हर वक्त हर पल की खबर से लोगों को कराते हैं बाखबर। DDC इलेक्शन 2020 की पल पल की कवरेज जो है जिला रामबन के बानीहाल सियासी जंग का पल पल का अपडेट देखिए न्यूज़ 18 पर बारामुल्ला से सज्जाद हुसैन के साथ। दूर दराज इलाकों की खबरों का भी किया अहाता, सरहदी इलाकों में भी पहुंचकर वोटरों की आवाज को उठाया। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक सियासी हलचल की पल पल की खबर न्यूज़ 18 के प्रोग्राम दिन भर पर कुपवाड़ा से याह्या सुल्तान के साथ। पीर पंचाल की पहाड़ियों के दामन तले गेटवे ऑफ कश्मीर के कुंड काजीगुंड इलाके से DDC इंतखाबात के पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर, क्योंकि हमारी पहुंच है आपकी ताकत। ज़हूर रिजवी। न्यूज़ 18 ने जमहूरियत के इस जश्न में वोटरों के जोश और खरोश को दिखाया, साथ ही इंतजामात में रही खामियों को भी किया उजागर। शदीद ठंड है, शदीद ठंड के बावजूद लोग यहाँ पे आ रहे हैं। न्यूज़ 18 इसी तरह अपनी कवरेज जारी रखेगा। सियासी जंग का पल पल का अपडेट देखिए जावेद भट्ट के साथ दिन भर गांधरबल से। जम्मू कश्मीर में DDC इंतखाबात की सियासी जंग का पल पल अपडेट देखिए न्यूज़ 18 पर मुनीश शर्मा के साथ पुंछ से। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए आतिफ खान। कई लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर वोट के हक को अदा कर रहे हैं। लोगों में ठंड के बावजूद भी जोश और जज्बे में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। और अब सभी को जिसका बेसब्री से इंतजार है, यानी इंतखाबी नतायज का, इसकी भी तेज और दुरुस्त खबरें अपने नाजरीन तक पहुंचाएगा। क्या ड्रॉ होता है वोट? मैंने ड्रॉ हुई वापसी भी। एक नई सोच को लोग जो है आज अब की बार वोट दे रहे हैं। DDC इलेक्शन की रिकॉर्ड कवरेज के बाद न्यूज़ 18 उर्दू पर तेज रफ्तार DDC इलेक्शन रिजल्ट लाइव। जम्मू कश्मीर के हर जिले में मौजूद हमारे नुमाइंदे देंगे आपको DDC इलेक्शन रिजल्ट से जुड़ी पल पल की खबर मुसलसल। DDC इलेक्शन रिजल्ट लाइव देखिए बरोज मंगल 22 दिसंबर को दिन भर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। जम्मू कश्मीर मराज कमराज अकेडमी ने कल्चरल अकेडमी के इश्तिराक से लाल मंडी श्रीनगर में महफिल मुशायरा का इनेकाद किया। रिटायर्ड जस्टिस बशीर अहमद किरमानी मेहमान खुसूसी थे। मारूफ और उभरते शायरों ने उर्दू व कश्मीरी ज़बान में अपने कलाम पर हाज़रीन की खुद दाद हासिल की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर मराज कमराज अकेडमी के सरपरस्त बशीर दादा ने कहा कि इस तरह की महफिलें शायरों के लिए ज़रूरी है। एक शायर जो है, एक राइटर जो है, वो जो लिखता है वो एक बुलबुल की तरह, जैसे बुलबुल गाती है वो उसकी इंस्पिरेशन होती है, सांस लेने का अमल होता है। तो शायर जब लिखता है वो एक्चुअली सांस लेता होता है, तो अगर वो लिखना बंद करे तो उसकी सांस रुक जाएगी वर्चुअली। तो हम चाहते हैं कि शायरों को ज़िंदा रखें। बॉडीली शायर ज़िंदा हैं, लेकिन हालात की वजह से जो हम बिल्कुल लिटरेचर से दूर होते जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि लिखते नहीं, लोग लिखते हैं लेकिन सुनने के लिए कोई है नहीं। तो उसके लिए हमने कहा कि नहीं साहब, हम छोटा मोटा प्रोग्राम ही करें, लेकिन करें, लोगों को बुलाएं और शुरा हजरात को बुलाएं, उन्हें कहें कि इस
ऐसे हालात में जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन में भी बहुत ज़्यादा लिखा गया लेकिन सुनता कोई नहीं। अभी आज का ये मुशायरा कोविड-19 के बाद का पहला मुशायरा है। हमारी हमेशा ये कोशिश रही है जो हमारे हमारा जो यूथ है जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ के साथ वाबस्ता है उसको एक जगह लाके उनकी हौसला अफजाई करते रहें। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।